Hello everyone. Today I bring you a new chapter, cell cycle and cell division. Previously we have solved to 65 questions of cell, the unit of life, and today we are going to solve about 50 questions of this chapter, cell cycle and cell division, which are coming in the previous 10 year in NEET exam. Okay, so let's start the first question. The process of appearance of recombination nodule occur at which substage of prophase 1 in meiosis? Options are Pachitin, Diplotin, Diakinesis, Zygotin. And here the answer is Pachitin. Explanation. Recombination nodule appear during the Pachitin stage of prophase 1 in meiosis. These nodules are thought to be involved in crossing over, a process where homologous chromosomes exchange genetic materials. This leads to genetic recombination, which is a significant source of genetic variation in sexually reproducing organisms. So here Pachitin is the correct answer. Second question. Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? Options are telophase, metaphase 1, metaphase 2, anaphase 2. And here the answer is option number D, anaphase 2. Explanation. Now splitting of centromere occurs during anaphase of mitosis or anaphase 2 of meiosis. During metaphase 1 and 2, chromosomes align at the equator, and during telophase, chromosomes reach the respective poles. Now, question number 3. The process of appearance of recombination nodule occur at which substage of prophase 1 in meiosis? ये क्वेश्चन पहले का ही रिपीट हो गया यहाँ पर, तो वही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पैचिटिन. रिपीटेडली आ गया ये क्वेश्चन, बस ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 4. Among eukaryotes, replication of DNA takes place in? किस फेज में replication of DNA होता है? आपको और हमको सबको पता है ये जो स्टेज है एस स्टेज और सिंथेसिस स्टेज में ही होता है रिप्लिकेशन. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन. replication of DNA takes place in S phase of the cell cycle in eukaryotes. Most of cell organelles duplicate in G1 phase. डुप्लीकेट्स होता है G1 फेज में, बट यहाँ पर जो बात आ रही है रिप्लिकेशन की वो होता है S फेज में और सिंथेसिस फेज में होता है. क्वेश्चन नंबर 5. मैचिंग पूछ रहा है, देखो पहले मैच कर लेंगे उसके बाद देखते हैं. M फेज, G2 फेज, क्योसेंट स्टेज एंड G1 फेज लिस्टों में दिया गया है. प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड. इनएक्टिव फेज, इंटरवल बिटवीन मियोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. फोर्थ दिया गया है इक्वेशनल डिवीजन. देखो एम फेज को कहा गया है कि वही एक फेज है जहां पर सेल डिवीजन होता है. माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. सो यहां पर हम लिख सकते हैं ए का फोर्थ में आ गया. G2 फेज जहां पर क्या होता है DNA synthesis stops but cell synthesis RNA, proteins etc. for next phase. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं proteins are synthesized. Quiescent phase is an inactive phase in which non-dividing cells enter. तो ये हो गया inactive phase में. And G1 phase is the interval between mitosis and initiation of the DNA replication. So 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया. क्लियर. आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. Select the correct statement. Tetrad formation is seen during lactoten. पहला इनकरेक्ट हो गया. टेट्राड फॉर्मेशन किस
फेज में शो होता है, किस स्टेज में शो होता है? ना जाइगोटिन ना ही लेप्टोटिन। ओके, तो पहला गलत हो गया। ड्यूरिंग अनाप्लिया द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमाटिड सेपरेट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। ओके, थर्ड, टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पार्किंचिटिन। Termination of chiasmata takes place during diakinesis, not Pachitin. Fourth, nucleolus, Golgi complex and ER are reformed during telophage. हाँ, ये करेक्ट आंसर है। फिफ्थ, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमाटिड दिया गया, यहाँ पर गलत हो गया। सिस्टर क्रोमाटिड की क्रॉसिंग थोड़ी होता है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होना चाहिए था। तो क्या होगा आंसर? बी एंड डी, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कौन सा सही कौन सा गलत है। देखो, पहला स्टेटमेंट 1, ड्यूरिंग जी नॉट फेज, यहाँ पर गो मत पढ़ देना, जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। ओके, गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, ये करेक्ट है। तो ए इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। इन जी नॉट फेज इज ए स्टेट इन द सेल साइकिल इन विच द सेल एग्जिस्ट इन ए क्यूसेंट और डोरमेंट स्टेज। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ड्यूरिंग द एस फेज सिंथेसिस फेज ऑफ इंटरफेज DNA replication occur and the centrosome which play a key role in the cell division also duplicates. आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 2023 का सवाल है ये, डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। ऑप्शंस में एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। आपका आंसर क्या होगा? मेटाफेज। Explanation, the doubling of the number of chromosomes can be achieved by disrupting mitotic cell division soon after DNA replication has occurred and before the separation of sister chromatids. This stage of mitosis is the metaphase, where chromosomes align in the center of the cell prior to the separation in anaphase. If meiosis is disrupted after this point, sister chromatid cannot separate, leading to the doubling of the chromosome number in the resulting cells. ये था आपका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रेस्पेक्टिवली डज नॉट सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट होता है किस स्टेजेस में? माइटोसिस के कौन से स्टेज में, मियोसिस के कौन से स्टेज में? तो यहां पर आपका आंसर होगा क्या? दोनों के एनाफेज स्टेज में। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट ड्यूरिंग द एनाफेज स्टेज ऑफ बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स इन द oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। कौन सा स्टेज होता है? क्या वो डायकाइनेसिस है, लेप्टोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन? यहां पर आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, डिप्लोटिन स्टेज। In oocyte of some vertebrates, diplotin lasts for months or year. This stage is referred as डिक्टियोटिन स्टेज। इसको और क्या कहते हैं? डिक्टियोटिन स्टेज भी कहा जाता है इसे। अब 11 क्वेश्चन नंबर, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस की प्रोफेज 1 में करेक्ट सीक्वेंस वाइज बतानी है आपको। पहला, सबसे पहले क्या होता है ना, यहां पर सबसे पहले क्या हुआ? क्रोमोसोम बिकम्स फुल्ली ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप।
ये पहला स्टेटमेंट हुआ ये, ओके। दूसरा, सिनाप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये तुम्हारा सेकेंड। तीसरा, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये तीसरा हो गया। फोर्थ इज योर डिसोल्यूशन ऑफ सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ। फिर आएगा तुम्हारा डी, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइस्माटा, ये हो गया 5। इस तरह से ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्लियर? 11 का आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 2022 का सवाल है ये। बाइवैलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग। ऑप्शन ए, काइस्माटा इन जाइगोट स्टेज, नहीं। सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोट स्टेज, बिल्कुल हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। काइस्माटा इन डिप्लोइड स्टेज, कॉम्प्लेक्स इन द पर्सिस्टेंट स्टेज, गलत। सो बी आपका आंसर हो गया, ओके। बाइवैलेंट टेट्राड फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स इन द जाइगोट स्टेज। Explanation: bivalent or tetrad formation is called synapsis, which is accompanied by the formation of the complex structure called synaptonemal complex. Next, 13. With respect to the metaphase, which of the following statement is incorrect? मेटाफेज को लेके कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, ये आपको बतानी है, ओके। पहला, क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, तो करेक्ट है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक्स प्लेस, ये भी आपका करेक्ट है। क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड, बिल्कुल। मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर नॉट मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, इंस्टेड मेटाफेज क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। 4 की जगह 2 होता तो आंसर सही होता आपका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. Which one of the following never occur during mitotic cell division? Mitotic cell division में ये कभी नहीं होता। देखो अभी, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ये तो होता है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, बिल्कुल सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ चला जाता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये आपका नहीं होता, सी वाला पॉइंट, ओके। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स, ये होता है। सो ऑप्शन सी आपका नहीं होता, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑकर ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ chromatids spindle fibers attached to the kinetochore and movement of the centriole towards opposite pole occur in both mitosis and meiosis. So option C is the answer. Next, the appearance of recombination nodule or on homologous chromosome during meiosis characterizes, क्या दर्शाता है ये? क्या वो सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स को दिखाता है? नहीं। बी ऑप्शन की तरफ आते हैं, ये बाइवेलेंट दिखाता है, गलत। साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर ऑकर, बिल्कुल सही। टर्मिनलाइजेशन, गलत, ओके। एक्सप्लेनेशन, Pachytene stage of meiosis is characterized by the appearance of recombination nodule, the site of the which crossing over occur between the non-sister chromatids of homologous chromosomes. So this is the correct one. अब मैचिंग पूछ रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ज्यादा छोटा सॉल्व कैसे होगा बताओ? चलो दिख जाएगा। मैचिंग 1 with 2, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम।
और यहाँ पर लिस्टों में उनकी लोकेशन के बारे में पूछा गया है, कहाँ होते हैं, किसा दिखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये ऑप्शन 3 में आ गया। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, acrocentric chromosome has centromere close to the end of the chromosome. Centromere close to the end of the chromosome. Submetacentric ऑप्शन नंबर 4, टेलोसेंट्रिक ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा 16 का? 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रिगार्डिंग मियोसिस व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी है। ओके, देखो there are 2 stages in meiosis, meiosis 1 and meiosis 2। ये तो करेक्ट है, हमें बताने क्या है, इनकरेक्ट बताना है। सेकेंड, डीएनए रिप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ meiosis 2। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन अकर इन meiosis 1। करेक्ट। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट वन। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। Meiosis involves 2 sequential cycle of the nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only single cycle of DNA replication. The stage between 2 meiotic divisions is called interkinesis and is generally short-lived and involve no DNA replication. Question number 18. Select the incorrect statement with the references to mitosis. पहला, all the chromosomes lie at the equator at the metaphase। बिल्कुल सही, हमें incorrect बतानी है। ठीक है। 8 spindle fibers attached to centromere of the chromosome। 8 नहीं होता है, गलत हो जाएगी। क्रोमोसोम्स डिकंडेंस एट टेलोफेज, ये भी आपका सही है। क्रोमोसोम डिकंडेंस होता है टेलोफेज स्टेज में। फोर्थ, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेज, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। न स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। Kinetochore are the disc structure printed on side of primary construction or centromere of the chromosomes. So B is the answer. Question number 19. Which the following stage of meiosis involves division of centromere? किस फेज में होता है? मेटाफेज 2 नहीं, एनाफेज 2 योर आंसर, टेलोफेज 2, मेटाफेज 1 गलत। So anaphase 2 is the answer. Explanation. In anaphase 2, the centromere separate and the sister chromatids, now individual chromosomes, move towards the opposite poles of the cell. The centromere separate and the 2 chromatids of each chromosome move to the opposite pole of the spindle. The separated chromatids are now called chromosomes in their own right. Next question number 20. मैचिंग पूछ रहा। देखो, S phase, G2 phase, quiescent phase, G1 phase. Protein synthesized inactive phase, interval between mitosis and initiation of the replication, DNA replication. देखो क्या दिया गया? S phase DNA replication, G2 phase क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। quiescent phase inactive stage, G1 phase ऑप्शन 3। So 4 1 2 3 4 1 2 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी।
Okay, B is your answer. 21 question number. The fruit fly has 8 chromosomes that are diploid in each cell. During interphase of mitosis, if the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? S phase के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना रहेगा? तो क्या होगा आंसर? क्या वो 16, 4, 32, 8? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 8. क्यों होगा देखो एक्सप्लेनेशन. During mitotic cell cycle, if the chromosome number in G1 phase 8 is remains same till metaphase, hence even after S phase, same chromosome number 8 is maintained in the cell of the fruit fly. So 8 is the answer. Question number 22. Which stage of meiotic phase prophase shows terminalization of chiasmata as its distinctive feature? जाइगोट, डायकाइनेसिस, पाचिटिन, लेप्टोटिन. आंसर होगा आपका ऑप्शन बी डायकाइनेसिस. एक्सप्लेनेशन. टर्मिनलाइजेशन ऑफ द chiasma takes place throughout the diplotin after crossing over at pachitin, and terminalization completion takes region in diakinesis. Zygotin is the sub-stage where synapsis among homologous chromosomes begins. So option B is the correct answer, diakinesis. 23 question number. The centriole undergoes duplication during. किसमें होता है डुप्लीकेशन? डी स्टेज. ओके, डी ऑप्शन डी, एस फेज. ओके, एस फेज में तो डुप्लीकेशन होता है. 24 फिर से मैचिंग पूछ रहा है. देखो क्या दिया भाई. जाइगोटिन, पाचिटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन, chiasmata, क्रॉसिंग ओवर, सिनाप्सिस. कहाँ कनेक्ट होगा बताओ. जाइगोटिन. Zygotin, it's the second stage of prophase 1. Chromosomes starts pairing together in a process called synapsis. So option 4, synapsis. Pachitin. Pachitin is the third stage of prophase 1. Bivalent chromosomes clearly appear as tetrad. Crossing over between homologous chromosomes occur. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर crossing over. Diplotin. Diplotin, the fourth stage of the prophase of meiosis, following pachitin, during which the paired chromosomes begin to separate into their two parts. तो यहाँ पर क्या होगा? डिप्लोटिन, chiasmata. Diakinesis, the fifth and the last stage of the prophase of the meiosis, followed by diplotin, where the separation of homologous chromosomes is complete and crossing over has occurred. Terminalization occur at the chiasmata, move towards the end of the tetrad. और इसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 25. Some dividing cell exits the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage or G0 stage. This process occurs at the end of. किसकी एंड के बाद ये आता है? यहाँ पर आपका होगा आंसर ऑप्शन ए G1 phase. Explanation. Some cells in the adult animal do not appear to exhibit divisions that the heart cells and many other cells divide only occasionally, as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. These cells that do not divide further exist G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage or G0 stage of the cell cycle. So ये था आपका explanation. Question number 26. In a mitotic cycle, the correct sequence phases is. Correct sequence क्या है ना? G1 phase, S phase, G2 phase, M phase. ऑप्शन ए आपका आंसर है. ओके, 27. Attachment of spindle fibers to the kinetochore of chromosomes becomes evident in. कब दिखाई देता है अच्छी तरह से ये? क्या वो टेलोफेज है, प्रोफेज,
नहीं. Option C, metaphase is your answer. All of the chromosomes are present in the metaphase, coming to rest near the equator, which one chromatid of each chromosome attached to the spindle fiber from one pole and its sibling chromatid joined to the spindle fibers from the opposite pole by its kinetochore. This is the explanation. Next, question number 28. मैचिंग पूछ रहा है, देखो इवेंट्स देन मैच करो. ऑप्शन बी है आगे, देख लेंगे उससे. पहला G1 फेज. G1 फेज में क्या होता है? सेल ग्रो एंड ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन. एस फेज में सिंपल डीएनए क्रोमोसोम रिप्लिकेट होते हैं. G2 फेज में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है. और एम फेज में अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो सीधा आपको दिया गया है सेम ऑप्शन 1 2 3 4 होगा. देखो कहाँ है ये ऑप्शन 1 2 3 4? नहीं, आपका है ऑप्शन सी. ओके, तो सी इज द करेक्ट वन 28 का. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू G1 ऑफ इंटरफेज. क्या दिया देखो, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बता रही. पहला, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस. नहीं, ये नहीं होता. सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए. बिल्कुल सही. न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस. नहीं. डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. ये भी गलत. सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज योर आंसर 29 का. क्वेश्चन नंबर 30. डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स ऑकर्स ड्यूरिंग. कब इसका डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स का? ना, आंसर होगा डिप्लोटिन स्टेज, ऑप्शन बी. द ब्रेकडाउन ऑफ द सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स as well as except structure known as chiasmata characterizes the diplotin stage. Okay, option B. 31. During meiosis 1, in which stage synapsis takes place? किस स्टेज में सिनाप्सिस होता है? ओके, जाइगोटिन. पहला ही आंसर हो गया आपका 31 का, जाइगोटिन स्टेज. ओके, ऑप्शन ए. ड्यूरिंग जाइगोटिन homologous chromosomes are paired, that is called synapsis. 32. The correct sequence of phases in cell cycle is simple: G1 phase, S phase, G2 phase, M phase. ऑप्शन डी आपका आंसर है, करेक्ट सीक्वेंस. 33. सेल इन G0 फेज क्या होता है इनके साथ? एग्जिस्ट द सेल साइकिल. सेल साइकिल से बाहर निकल आते हैं और रेस्ट करने लग जाते हैं. एक्सप्लेनेशन: सेल इन द G0 phase are considered to be have exited the cell cycle. They are in a dormant stage and do not proliferate unless they are stimulated. Yet they are metabolically active. Okay. Now 34. The stage during which separation of the paired homologous chromosomes begin is. किस स्टेज में ये होता है ना? ऑप्शन बी, डिप्लोटिन. ओके, एक्सप्लेनेशन: डिप्लोटिन is the fourth stage of the prophase 1 in meiosis, when the pair chromosome begins to split and appear as 0 or 8 shaped structure under the microscope. So option B is the correct one. Question number 35. Following statement is correct respect to cell cycle. Correct ढूंढना है आपको. ओके, देखो DNA content of cell remains constant during the entire cell cycle. पूरी तरह से गलत है. A cell in G1 phase has doubled the amount of DNA than a cell of G2 phase. ये भी गलत हो गया, सेम होता है. Each chromosome has 2 chromatid in G1 phase. गलत. Nerve cell in adult human are in G0 state. बिल्कुल सही. So D आपका आंसर है. Nerve cell in adult do not divide further. ओके, और सेल साइकिल से वो बाहर निकल आते हैं.
They exist the G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage of the cell cycle. Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate. Next is 36. With the following option given correct sequence event during mitosis, mitosis के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? 36 देखो, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन, टेलोफेज। गलत, जम्बल्ड कर दिया इसमें। बी कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअसेंबली, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टेलोफेज। ये करेक्ट लग रहा है। सी की तरफ आते हैं। कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअसेंबली, सेग्रीगेशन, टेलोफेज। गलत। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टेलोफेज। ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपको मिल गया ऑप्शन बी। ओके, एक्सप्लेनेशन। द फॉलोइंग इज द राइट ऑर्डर ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। पहला, ड्यूरिंग ईयरली टू द मिड प्रोफेज डीएनए कंडेंस अलाउइंग chromosome to be seen. Second, disassembly of the nuclear membrane begins in the late prophase or the transition to metaphase. Third, during metaphase, chromosomes are arranged along the equator and process known as congregation. Fourth, during anaphase, centromere division or splitting occur, resulting in the formation of daughter chromosomes. And fifth one is, during anaphase, daughter chromosomes divide to migrate to the opposite pole, resulting the segregation. And sixth stage is the production of two daughter nuclei occur during the telophase. So ये था आपका events। 37 क्वेश्चन नंबर 2017 का सवाल है ये। डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर, बैक्टीरिया में कब होता है? यहाँ पर होगा आपका आंसर ऑप्शन सी, प्रायर टू फिशन। Explanation: in bacteria, DNA replication occur before fission because of the primordial origin. Prokaryotes do not have a well-defined S phase. So C is the answer. 38. At what phase of the meiosis homologous chromosomes are separated? यहाँ पर आंसर क्या होगा? किस meiosis स्टेज में होता है ये सेपरेशन होता है? आंसर इज योर ऑप्शन डी, एनाफेज 1. Okay, the homologous chromosomes separate in anaphase 1, but sister chromatids stay connected at their centromeres. Now 39. During cell growth, DNA synthesis takes place in. During cell growth, DNA synthesis takes place in. किस स्टेज में होता है डीएनए का सिंथेसिस? बार बार पूछा जा रहा है। एस फेज और सिंथेसिस फेज में होगा ना, तो सी इज द आंसर। The S phase, also known as synthesis phase, is the time when DNA synthesized or replicated. The amount of DNA per cell doubles through this time. Next, question number 40. Which the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? Not a feature, okay, characteristic feature. स्पिंडल फाइबर तो फीचर में आता है। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस ये भी है। क्रोमोसोम मूवमेंट हाँ ये भी है। सिनाप्सिस नहीं है, ओके, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक्सप्लेनेशन: ओनली माइटोसिस ऑकर इन सोमैटिक सेल, meiosis on the other hand occur in the germ cell. Chromosomes begin pairing together during the zygote stage of the meiosis 1, and this process is known as synapsis. Next is 41. मैचिंग पूछ रहा है। दोनों देखना एक साथ तभी कर पाओगे। चलो इतना आ जाएगा। देखो पाचिटिन किसमें आएगा? ये पाचिटिन पाचिटिन कम्स अंडर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस 3 में आएगा ये, ओके, 3 में आएगा पाचिटिन।
मेटाफेज 1, chromosomes aligned to the equatorial plate in metaphase 1, और ये कहाँ लिखा गया है? 4 में आएगा मेटाफेज 1, ये आएगा आपका 4 में। Diakinesis, it is a process of the chiasmata being terminated, so ये 2 में जाएगा। एंड जाइगोटिन इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 1 में जाएगा ये। तो पहला 3, 4, 2, 1, ओके, यही तो है। देखते हैं आंसर की तरफ। 3, 4, 2, 1, ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। In meiosis, crossing over is initiated at. In meiosis, crossing over is initiated at. किस स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर? यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है पैचिटिन। एक्सप्लेनेशन: The exchange of genetic material between the two non-sister chromatid of homologous chromosomes is known as crossing over, and crossing over is likewise an enzyme-mediated process with recombinase as the enzyme involved. कौन सा एंजाइम होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। स्टेज का नाम क्या है? पैचिटिन। अगेन करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, देखो थोड़ा छोटा कर देते हैं। ए, सिनाप्सिस अलाइन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, किस में आएगा ये? 2 में आएगा ये। बी, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, G2 फेज। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, अभी हमने कहा पैचिटिन। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमाटिड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, किसमें होगा ये? एनाफेज 1। तो 2, 3, 5, 4, 2, 3, 5, 4, ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। A somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to the gametes of the same species has twice the number of chromosome and 4 times the amount of DNA. S phase कंप्लीट हो चुका है, तो बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा आपका। पर और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 4 times the number of chromosomes and twice the amount of DNA, गलत। twice the number of chromosome, twice the amount of DNA, गलत। 7 of chromosome but twice the amount of DNA, ठीक है? तो A is the answer। 45 arrange the following event of meiosis in correct sequence: crossing over, synapsis, termination of the chiasmata, disappearance of the nucleolus। पहले क्या होगा? सिनाप्सिस, फिर क्रॉसिंग ओवर, फिर टर्मिनेशन ऑफ द chiasmata and finally disappearance of the nucleolus। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, PACD। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था ये। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन द सेल रिमेन एट 4 क्रोमोसोम लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2 क्रोमोसोम्स। क्या होगा? किस में होता है ये? किस फेज में होगा ये ना? आपका ये आंसर होगा G2 फेज एंड M फेज में होगा ये। G2 फेज एंड M फेज में होगा ये, ठीक है? 47 इन S फेज ऑफ द सेल साइकिल, S फेज में क्या होता है? बार बार पढ़ते आ रहे हैं। अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल, तो B आपका सीधा सीधा आंसर हो गया। 48 द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ meiosis?
किस स्टेज में होता है? एंजाइम रिकॉम्बिनेज, फिर से पूछ गया 5/10. ओके, 49 क्वेश्चन. Stage in cell division is shown in the figure. Select the answer which gives correct identification of the stage with its characteristics. डायग्राम को देख के करेक्ट आपको बतानी है क्या होता है यहाँ पे. टेलोफेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस नॉट येट रिफॉर्म्ड येट. गलत हो गया. टेलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, सही है. लेट एनाफेज बिल्कुल नहीं है डायग्राम को देखते हुए. साइटोकाइनेसिस तो है ही नहीं. तो आंसर क्या होगा? आंसर बी विल बी योर आंसर. द न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म ड्यूरिंग द टेलोफेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. द complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called. Complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent. Okay, in the zygote stage bivalent or tetrad refers to a pair of homologous chromosomes. इसके साथ हमने लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है अभी. आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा आने वाली पेपर के लिए, नीट के एग्जाम्स के लिए. कल हम कुछ नीट के और क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे जो रिसेंटली जो पेपर हुआ था, सेकेंड फेज में जो नीट का जो पेपर हुआ था, जो जिसका रिजल्ट आपका कल पब्लिश हुआ शायद, उसकी पेपर को हम कल लगाने वाले हैं. ठीक है, पहले बॉटनी वाला पोर्शन लगाएंगे, फिर जूलॉजी पोर्शन में आएंगे. तो ये कल के लिए वर्क है और आप सब इस वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना जितना भी हो सकता है. आगे और चैप्टर्स ऐसे लेके आएंगे. अभी तो फिलहाल 11th के चैप्टर्स चल रहे हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब से. आगे 12th के चैप्टर्स भी आएंगे. इवन कुछ चैप्टर्स मैंने नहीं किया, जैसे कि पहला चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, ओके, बायोमोलिकुल्स है, उनको हमने लास्ट के लिए रखा है. लाइन बाय लाइन उसके क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, तो अभी जो है 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा. कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे पिछले 10 साल के, जिनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ. तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और तैयारी करते रहिए. नीट क्रैक करना है. ओके, अभी जो नेक्स्ट आने वाला है तो उसी का तैयारी अभी से कर लो. बाद में करेंगे बोलते बोलते बस जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो कुछ नहीं आता है. फिर तैयारी करने के लिए 1 साल और लगा देते हैं. तो इसलिए अच्छा होगा कि शुरू में ही स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लो इसे. जो भी 11th में आए हैं, न्यूली ज्वाइनिंग किया गया है कॉलेजेस में, आप अभी से स्टार्ट कर लो. जिनको नीट क्लियर करना है, जिनका ये एम है, ओके. तो कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू. जय जगन्नाथ.